facilities and opportunities. Article 39 also says very similar about adequate means of livelihood and ownership control. Article 46 about scheduled caste and scheduled tribes. So I just want to highlight how, because of the specific actions taken by our government, you find 1969, I go back, sir, for a minute. Mrs. Indira Gandhi on the bank nationalization said, the political situation in our country demands, quote, that banking facilities should be extended in an increasing measure to backward areas, to agriculture, to small-scale industry, and so on, and perhaps banking operations should be informed by a larger social purpose, unquote. But in spite of introducing socialism into Gandhi justified for bringing nationalization of the banks. They paid only lip service, justified for bringing nationalization. Census data reveals they paid only lip service, justified for bringing nationalization. Access to banking service. Bank accounts, sir, zero balance accounts were only 10.3 crores. By contrast, sir, 54 crore Jan Dhan accounts have been opened since 2014. 56% of the accounts belong to women. Similarly, pensions, insurance, and so on, sir. PM Mudra, 50 crore sanctioned accounts, 68% are women. Stand Up India, 1 crore SC/ST women borrowers. 30,000 crore has been distributed, 2.5 lakh people, of whom 76% of women are benefiting. PM Swanidhi, sir, tax street vendors, of whom 45% are women, 42% are OBCs, and so on. Sir, we repeatedly in Lok Sabha and here spoke about how former Prime Minister said, if I send 1 rupee down, only 15 paisa reaches. By bringing in technology and using DBT, Prime Minister Modi made sure that accounts will receive, the beneficiaries will receive their money directly into their account. 1 rupee means 1 rupee will reach them, and this has helped save 3.48 lakh crores of taxpayers' money. These are very important to say that directive principle of state policy, which has even more things for all of us to do, can bring in poverty alleviation, but not the Nara Garibi Hatao, which delivered nothing on poverty. So lastly, I'll pay my respects to the women who were part of the constitution makers. As I said, 15 out of 385 members were women. I would think you will indulge me when I read the names of these 50 women. Ammu Swaminathan, Annie Mascarenhas, Dakshayani Velayudan, Begum Aizaz Razul, Durgabai Deshmukh, Hansa Jivraj Mehta, Kamla Chaudhary, Leela Roy, Malti Chaudhary, Purnima Banerjee, Rajkumari Amrit Kaur, Renuka Ray, Sarojini Naidu, Sucheta Kriplani, and Vijayalakshmi Pandit were the prominent women who were part of the Constituent Assembly, sir. The contribution of these women in the constitution making is immense. Assembly, sir. The contribution of these women in the constitution making is immense. Assembly, sir. The contribution of these women in the constitution making is immense. Assembly, sir. The contribution of these women in the constitution making is immense. Ray served as ministers in their respective state governments. In the Sarojini Naidu and Sucheta Kriplani went on to become ministers in their respective state governments. In the Sarojini Naidu and Sucheta Kriplani went on to serve the All India Women's Congress, who have done extremely good work. Women's Conference, All India Women's Conference, and these women were all celebrated during Azadi Ka Amrit Mahotsav, which we celebrated from 2022. The last observation I'd like to make, sir, it is very interesting that in this House, the first act that we passed is the reservation for women, which was the new act passed in the new parliament. I'd like to reiterate that Bharatiya Janata Party
my party has always been committed for women and women's participation in politics. Even as early as 1994 in Vadodara National Convention, the BJP very clearly passed that seats must be reserved for women in both parliament and state assemblies. In 1994, sir. Then in 1998, BJP reiterated its commitment for women reservation by introducing it in the Lok Sabha. July 2003, BJP in its national executive in Raipur also passed a resolution to give reservation. 2007, BJP national executive approved 33% reservation for women. 2008 again, BJP amended its constitution so that its own office bearers will have 33% reservation for women, and I'm glad to say that I'm one of the beneficiaries of that reservation. And BJP has consistently supported women's reservation in Rajya Sabha 2010, sir. I remember late Shri Arun Jaitley supported passionately to pass that, and in Rajya Sabha it was passed. But curiously, why that didn't go to the Lok Sabha, no one knows. And in the Lok Sabha, I think it was for reasons better known, but what was said in the public was some of the alliance partners were not favoring. Therefore, the Indian National Congress did not have the courage to take it into the Lok Sabha at that time. BJP's Sankalp Patra of 2014 supported women's reservation. And again, Sankalp Patra before the 2019 election also very clearly supported. But I want to highlight the fact, sir, that in 84-89, Shri Rajiv Gandhi had 426 members in the Lok Sabha and 159 members in the Rajya Sabha. They did not have the conviction to pass the women's reservation bill at that time. Very clearly, they have been anti-women always. Shah Banu case is a very clear example. Sir, I would highlight the fact that although the credit is being taken for the Panchayat Reservation Act by Shri Rahul Gandhi and the dynasty, it was not him. It was P.V. Narasimha Rao who brought it and passed it on. But even then, it was only a lip service because no financial powers were given. Now, Honorable H.D. Deve Gowda ji, who former Prime Minister, is not here, but in 1996, there was during his time, the reservation bill was brought in. Nothing was supported by Congress at that time. Atal Bihari Vajpayee ji in 98, in 99, in 2002, 2003 brought it. No, the Congress wouldn't support. But the Congress's memory is very weak that they didn't support any of the bill all the time, whether it was Deve Gowda ji or whether it was Atal Bihari Vajpayee ji. And then in 2008, even Dr. Manmohan Singh faltered. They managed to pass it in Rajya Sabha, which I said a minute ago, but did not go to the Lok Sabha for fear of their alliance partners threatening to walk out of the alliance, and they didn't want to lose power, but they wanted to save their kursi only, and therefore did not do justice to the women. Whereas Prime Minister Modi and BJP, from the beginning, stood by women, made the first change in the party, and brought the reservation bill here. And therefore, if anybody is committed to the Constitution, it is BJP, Prime Minister Modi, and this government. And therefore, people who are walking with a book in their hand, Constitution, sometimes not knowing that inside there are Kora Kagas, nothing printed. They're not even opening it to see whether it is there. But they're walking around with this book, should know that they are the ones who repeatedly have failed the cause of the Constitution of India. Thank you very much, sir. Honorable members, to accommodate members willing to participate in the discussion and ensure sufficient time, if the House agrees, the lunch hour may be skipped today and tomorrow. And if required, I will take a call to increase the time further. Honorable Leader of the Opposition, Shri Mallikarjun Kharge. सर, आपने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
सर आज 16 दिसंबर ये बांग्लादेश का लिबरेशन डे, जो हमारी बहादुर नेता इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और बांग्लादेश को लिबरेट करके और 1 लाख लोग, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी कराकर इस देश को बचाया और इस देश की शान पूरे दुनिया में चले गई और सारे लोग और 1 लाख लोगों को बंदी करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो जिनको आयरन लेडी कहते हैं उसने ये बता दिया अगर हमारे नज़दीक अगर कोई आए तो उनकी खैर नहीं, ये उन्होंने बता दिया। और आज वो दिन है बांग्लादेश लिबरेशन, और वहाँ पर जो गड़बड़ी चल रही है कम से कम ये लोग आँख खोलकर वहाँ के माइनॉरिटी को बचाने की कोशिश तो करें। सर मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ और यहाँ से शुरू करता हूँ ताकि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन हम नहीं पढ़े अब उनको बताना पड़ता है कि हमको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता है। हम नहीं सर, हम तो म्यूनसिपालिटी स्कूल में पढ़े हैं, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। निश्चित है कि उनकी अंग्रेजी भी अच्छी हो सकती है, उनकी हिंदी भी अच्छी हो सकती है और सभी कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन उनके करतूत क्या है अच्छे नहीं। सर मैं आपसे ये कि क्या है क्या तो रहेंगे वो बाद में जवाब देंगे। सर एक आपको शायरी सुनाना चाहता हूँ अहमद फराज की मत कत्ल करो आवाज है उसका नाम। तुम अपने अंकितों के नेज़े हर दिल में उतार जाते हो, हर दिल में उतारे जाते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो। हम पालनहार है फूलों के, हम पालनहार है फूलों के, हम खुशबू के रखवाले हैं। तुम किसका लहू पीने आए, तुम किसका लहू पीने आए, हम प्यार सिखाने वाले हैं। इस शहर में फिर क्या देखोगे, इस शहर में फिर क्या देखोगे जब हर यहाँ मर जाएगा, जब तेग पे लय कट जाएगी, जब शेर सफर कर जाएगा, जब कत्ल हुआ सूर साजों का, जब काल पड़ा आवाज़ों का, जब शहर खंडर बन जाएगा, जब शहर खंडर बन जाएगा, फिर किस पर संग उठाओगे, संग यानी पत्थर, फिर किस पर संग उठाओगे। अपने चेहरे आईनों में जब देखोगे डर जाओगे। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, आज की स्थिति, आज की परिस्थिति जो है, हमको बताना पड़ता है कि कैसा इस संविधान के तहत हुकूमत चलाने वाले लोग कोट करके आगे का, पीछे का, बीच में का सब बोलते रहते हैं। तो उन्होंने बहुत आपत्ति उठाई सोशलिज्म पे,
मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि ये जो है संविधान में जो प्रियम्बल में लिखा है और जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लिखा है और इसको सर्वसम्मति से जो पास हुआ है उस पर भी आपत्ति जता रहे हैं, तो आप ही सोचिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में है क्या अगेंस्ट में है। मैं देखूं, अब उनको मालूम है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of integrity of the nation. सर, ये तो संविधान में नवंबर 26th डे ऑफ नवंबर 1949 में ये हमने स्वीकार किया है। जब हमने ये स्वीकार किया है, इसके तहत हमको चलना चाहिए, हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सिर्फ एक दूसरे के खामियां निकाल के अगर आप बोलते जाएंगे तो तुमने 5000 सालों में कैसी तकलीफ हम लोगों को दी है, मुझे भी ये बोलना पड़ता है। मैं लाया हूं, आपकी मंशा क्या थी? ये संविधान जो बने वो मनुस्मृति के तहत बने। मनुस्मृति के जो कानून होते हैं, हाँ, कानून होते हैं वो जो बनाए हैं, तो उसके तहत करना चाहिए था। ये जनसंघ की मंशा थी, ये आरएसएस की मंशा थी, ये आपकी मंशा थी। और आप सोशलिज्म की बात करते हो। अरे जो लोग इनइक्वालिटी पे फेथ है आपका, ये पढ़ो, ये आपका भी, मैं तो पढ़ के आपको लिखा हूँ, इसमें नहीं पढ़े बोल के आप मत समझना। जो हम ये पत्ते लगाया हूँ वो एक एक अगर पेज पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे उठ जाएंगे। अगर आपके पास कुछ हाँ, अरे एड्रेस उनको अच्छा, उनको आपको देखना भी अच्छा नहीं लगता। चलो तो सर ये क्या लिखा है, मैं आपको ये प्रेजेंट कीजिए। और ऐसे लोग जो लोग झंडे से नफरत करते हैं, जो लोग हमारे अशोक चक्र से नफरत करते हैं, जो लोग संविधान से नफरत करते हैं, और ये लोग आज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। ये क्या है? अरे आपने तो साहब ये संविधान जब बना, आपने जब ये संविधान बनी सर, उस वक्त संविधान को जलाने वाले लोग लालमय, ये जो रामलीला मैदान में बाबा साहब अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी का और महात्मा गांधी जी का पुतला वहां पर रख के इन्हों जलाए उस दिन, जिस दिन इम्प्लीमेंट हुआ। और अरे चुप बैठो, हो ना, बैठो। हाँ, जलाए सो लोग हमको संविधान कैसा बचाया और क्या किया। नेहरू जी को गालियां, इंदिरा जी को गालियां, और कहां तक गांधी पूरी फैमिली को गालियां। शर्म आना चाहिए। पढ़ो, आप इतिहास पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट पढ़ने के बाद, संविधान बनने के बाद आप लोगों ने कैसी बातें संविधान के बारे में आपने बोला है, कहा है। आप तो देख लो,
लेकिन ऐसे लोग टीका करते हैं। सर, और एक मैं आपको No, I'm not. No, I am not yielding. Should be authenticated. No. Honorable members, Authenticate. only when the speaker will yield, I can give an opportunity. If there are issues, you can have notice. And I'm sure the House will bear with me on this. And I have a mind to enrich myself. जो किताब आपने दिखाई है मैं पढ़ूंगा सर, बाद में नहीं अभी देता हूँ। मनुस्मृति की किताब ये 3-4 मैं जला वो उतना पढ़ दो और मेरे को वापस कर दो, क्योंकि आजकल मिलता नहीं। Honorable members, can I return a document put on the table? I can't. It has to be put on the table. अच्छा, मैं और एक खरीद के देता हूँ। Please continue. सर, आपको 7 दिसंबर 2022 का दिन याद दिलाना चाहता हूँ, जब पहली बार सभापति के रूप में इस सदन में पधारे थे। मैंने आपके स्वागत में कहा था कि आपको नियमों, मेंबर्स के अधिकारों और भावनाओं की जानकारी बहुत है। जैसे संसद 2 सदनों के मिलकर चलती है, उसी तरह लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के 2 पहियों पर चलता है। सत्ता दल का अपना सरकारी एजेंडा होता है और हम लोगों के मुद्दों को यहाँ और उनके सवालों की चर्चा हम चाहते हैं। मैंने कहा था, हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस मकसद से राज्यसभा का गठन किया, उसी भावना से ये सदन काम कर पा रहा है या नहीं, इस पर आप गौर कीजिए, इस पर आप बोलिए। और टीका करने से आपके पाप धो जाने वाले नहीं है। जो कोविड में मरे, जो हर जगह आज जो अट्रॉसिटीज हो रहे हैं, शेड्यूल कास्ट पे हो रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब से हो रहे हैं और महिलाओं पे हो रहे हैं। यहाँ तक आप सुने होंगे सर, मध्य प्रदेश में एक शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे के मुंह में यूरिन कराया, मूत्र। इन समस्याओं को पहले सुलझाओ। लोगों को जो हमारे को जो बुद्धि दे रहे हैं ना, अपनी गवर्नेंस को सुधारो, वो छोड़कर आप मनमाने बोल रहे हैं। सर, आपका शुक्रिया भी हम अदा करते हैं, इसलिए कि संविधान के स्वीकार कर जाने के बाद 75 साल में आप जो चर्चा के लिए 2 दिन टाइम दिए और हमको टाइम भी अलॉटमेंट किए, लेकिन थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा भी हो तो हमारे लोग बोलने दो, क्योंकि जब तक आपने तो बोला है पहले ही, तो आपका धन्यवाद करता हूँ। तो इसीलिए, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम लिया तो बाकी के लोगों को मिलता नहीं, इसीलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। और दूसरे चीज़ ये है कि सबसे पहले मैं उन महान नायकों को श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने एक समतावादी भारत का सपना देखा था। और सभापति जी, स्वाधीनता संग्राम के दौरान ही संविधान निर्माण की सोच उपजी थी। कांग्रेस के इतिहास से ये गहराई से जुड़ा है और 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में कराची कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने
मूल अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव रखा था जो पारित हुआ। ये ऐसा ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, ये मूवमेंट से बना, ये आजादी के लड़ाई से बना और उसी वक्त ये सोच थी 1931 का, ये आज का नहीं है। और नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग को 1937 के चुनाव का केंद्रीय मुद्दा बना दिया था। महात्मा गांधी जी ने 25 नवंबर 1939 को स्टेटमेंट दिया था। क्या दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुझे अन्य बातों के अलावा संविधान सभा के गठबंधन से उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करने के लिए विवश किया है। मैं और एक बार पढ़ता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुझे अन्य बातों के अलावा संविधान सभा के गठन से उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करने के लिए विवश किया है, गांधी जी ने कहा था जब उन्होंने कांग्रेस के सभापति जी सर संकल्पों की पहली बार इसे पेश किया तो मैंने इस विश्वास के साथ अपनी संतुष्टि कर ली कि उन्हें लोकतंत्र की तकनीकी बारीकियों के बारे में बेहतर जानकारी है, परंतु मैं पूर्णतः संशय मुक्त नहीं था। तथापि वास्तविक तथ्यों में मेरे सभी संशयों को दूर कर दिया गया। ये महात्मा गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में और उस वक्त किस ढंग से संविधान बनाना और इसका किस तरीके से काम होगा, ये महात्मा गांधी जी ने स्वीकार किया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो उनके लिए सुबह शाम क्रिटिसाइज करते बैठते, अरे पीछे कितना काम हुआ इसके लिए, कितने लोग लड़े, कितने सलाहें दिए, ये सब छोड़ो। महात्मा गांधी बोले वो भी नहीं सुनेंगे, नेहरू जी बोले वो भी नहीं सुनेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोले वो भी नहीं सुनेंगे, मौलाना आजाद बोले वो भी नहीं सुनेंगे। क्या सुनने वाले हैं? आप तोड़ मोड़ करके यहाँ लोगों को समझाने के लिए आए हो, क्या संविधान के ऊपर चर्चा करने के लिए आए? सर, संविधान की प्रस्तावना में मैं अभी पढ़ा, वो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं। इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब मैंने अभी पढ़ा। इन चीजों की ही जरूरत है हमको समानता होना चाहिए, हमको स्वतंत्रता होना चाहिए, हमको बंधु प्रेम होना चाहिए और न्याय होना चाहिए। इसमें ये जो चंद शब्द हमारे संविधान में है और जिसको हमने सभी स्वीकार किया है, लेकिन इस पे भी आपत्ति हो रही है कि सोशलिज्म क्या, फलाना क्या है। यही है कि इकोनॉमिक्स पे बात करें, नेचुरली वो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक में ज़्यादा एक्सपर्ट्स है और ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो नेचुरली जवाहरलाल नेहरू जी के यूनिवर्सिटी से है और वो भी इकोनॉमिक्स में इनकी पढ़ाई हो गई। नेचुरली वहाँ क्या पढ़े मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इतने प्रोग्रेसिव है, देश बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। चाहे इकोनॉमिक्स में हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस में हो, चाहे हिस्ट्री में हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी में हो, चाहे अपना हर सब्जेक्ट पे वहाँ पर बहुत ही उनको मान सम्मान दुनिया में मिलता है। और बहुत से जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं वो दुनिया में अपना नाम किए हैं। और
डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा विश्वास रखते हैं। लेकिन यहाँ अनडेमोक्रेटिक थिंग्स को जो खत्म करने की बात हो रही है, जो डेमोक्रेटिक थिंग्स है उसको खत्म करने की बात यहाँ हो रही, ये कैसा? अरे जो आइडियोलॉजी को आप एक बार स्वीकार करते हो, ये बार बार कैसा बदलता है? आपने तो, अरे चुप बैठो भाई, अब बार बार आप कैसा बदलते हो? मैं एक ही पार्टी में हूँ कम से कम 1969 से आज तक कोई पार्टी नहीं, एक ही सिंबल है मेरा, एक गाय बछड़ा, अब क्या है हाथ। मैं किधर नहीं गए, तो यहाँ घंटे को सर जरा इनको चुप रहने का भी बोलिए, क्योंकि मैं तो चुप बैठा था जब निर्मला सीतारामन जी बात कर रही थी। कुछ नहीं सर, पता नहीं कब ये हृदय परिवर्तन हुआ इनका, 224 के चुनावों के बाद हुआ क्या पहले ही हुआ था, मुझे मालूम नहीं। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन की अब जरा बात कर रहे हैं, अब अभी हुआ, कब हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन कम से कम उनका हृदय परिवर्तन करने का काम इस देश की जनता ने 2024 के इलेक्शन में दिखाया। सर मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, पूरा देश जानता है 1949 में आरएसएस नेताओं ने भारत के संविधान का विरोध किया था, क्योंकि ये मनुस्मृति पर आधारित संविधान नहीं था। इस बारे में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 के अंक में विरोध करते हुए संपादकीय यानी एडिटोरियल में ये लिखा था, आप लोगों के मन में आज भी मनुस्मृति वो कायम है। मैं बार बार बोलता रहा, आप लोग उल्टा हमारे ऊपर ही इल्जाम आप लगाते रहे। सर सभापति जी, न तो इन्होंने संविधान को स्वीकार किया, न तिरंगे झंडे को माना, इसीलिए पहली बार 26 जनवरी 2002 को कोर्ट के आदेश पर आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा मजबूरी में फहराना पड़ा। सर तिरंगे झंडे को माना, इसीलिए पहली बार 26 जनवरी 2002 को आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा मजबूरी में फहराना पड़ा, क्योंकि कोर्ट का आदेश था। चलिए कम से कम संविधान के वर्किंग पर चर्चा के लिए तो मान लिया आपने कि अब हम सभी लोग तिरंगे के नीचे ही काम करेंगे। सभापति जी, हमारा संविधान भारत के हर व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है, गरीब और कमजोरों की आवाज है, सत्ता का नैतिक मार्गदर्शक है, जाति पंथ लिंग या आर्थिक आधार पर भेदभाव करने की इसमें गुंजाइश नहीं है। लेकिन संविधान पर खतरा बना हुआ है, आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सहेज कर रखने के लिए हमें लगातार चौकन्ना रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इनकी मंशा कब बदलती क्या होती मालूम नहीं है। इसीलिए क्योंकि जो लोग 70 साल पहले अपनी पार्टी जो स्थापना की थी और अपना इनका जो मेन सपोर्टर है आरएसएस, ये सब लोग इसके खिलाफ बोलते गए, लेकिन कम से कम उनको अब देश के यानी सुरक्षित रखने का, एक रखने का अब बुद्धि देश के लोगों ने दिया। इसलिए मैं आपके तरफ से, आपके ओर से उनको भी धन्यवाद देता हूं, आपके बदलते हुए नीति को, और जो सम्मान
कॉन्स्टिट्यूशन को दे रहे हैं, सम्मान झंडे को दे रहे हैं, सम्मान देश के लोगों को दे रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो बनाए हैं ये सारी चीजें, उनका भी याद आपको अब आ रहा है। इससे पहले उनको याद ही नहीं था, वो सब डूब गए थे। सर, मैं जब बहुत से शक्तिशाली देशों ने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, महिलाओं को वोट का हक नहीं था, तब भारत में महिलाओं के समेत सभी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार अगर किसने दिया, वो कांग्रेस ने दिया, संविधान में दिया। और ये संविधान अडल्ट फ्रेंचाइज, सर आपको तो मालूम है कि कितने देशों के, आप भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे, बहुत से महिलाओं को, या ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस, वहां पर डेमोक्रेसी की बहुत बातें करते थे, लेकिन डेमोक्रेसी के साथ, संविधान के साथ उनको वोटिंग का पावर नहीं मिला था। ये एक ही देश ऐसा है जिस दिन हमारे को ये मिला, आजादी मिली, संविधान इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उस दिन से अडल्ट फ्रेंचाइज सबको मिला। गरीब, अमीर, कम से कम काम करने वाले लोग, मजदूर, किसान, सबको मिला। और ये किसकी देन है सर? ये नेहरू जी की नहीं है, ये अंबेडकर की नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का नहीं है। और वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इनके मेंबर थे, वो सब चिल्लाते रहते थे। मैं पूरा वो डॉक्यूमेंट्री देखा हूं, आप भी देखिए, 10 घंटे का डॉक्यूमेंट्री है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा